अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन किराम, गांव देहात का इलाका, खेलते हुए बच्चे आपस में झगड़ पड़ते हैं और फिर ये लड़ाई खून रेजी में तब्दील हो जाती है। बड़े इस लड़ाई में क्यों कूद पड़े और उसके नतीजे में क्या कुछ हुआ, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन, मंजर है फैसलाबाद में तहसील समुंदरी के एक गाँव का। बच्चे आपस में खेल रहे हैं और बच्चों की किसी बात पे लड़ाई हो जाती है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि उसी बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़ते हैं और फिर एक खातून कम अक्ली का मुजाहरा करते हुए अपने भाइयों को फ़ोन कर देती है कि यहाँ पे आओ, मुझे तुम लोगों की मदद की ज़रूरत है। भाई जज्बातियत का मुजाहरा करते हैं, मुसल्लह होकर धावा बोलते हैं और एक खातून को कत्ल कर देते हैं, जबकि उनके भाई को भी गोलियां लगती हैं और वो ज़ख्मी होते हैं। टीम मुजरिम कौन आज इस वाक़े पे बात कर रही है, इस बेहिसी पे बात कर रही है, इस जल्दबाजी और जज्बातियत पे बात कर रही है कि आखिर हम अपनी ज़िंदगियों में ठहराव क्यों नहीं ला सकते। हमारे साथ मुद्दई मुकदमा मौजूद हैं और ये मज़रूब भी हुए उसमें। इनसे वाक़या जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस दिन, क्या मुहर्रिकात थे, लड़ाई किस बात पे हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, भाई अपना नाम दस्यो जी। मोहम्मद यासीन। यासीन साहब की गल की बनी सी, एडा किहड़ी क्यामत आ गई सी भी एक खातून जिहड़ी ਉਹ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਸਰ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੋਜਰੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੋਜਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵਾਪਸੀ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਐਸਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਿਲਾਰੀ ਹੈ, ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਰ ਦਾ ਘਰ 2-4 ਘਰ ਹਟਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਆ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣੇ ਹੈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡਦੇ ਆ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਥੱਪੜੋ ਥੱਪੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਾਗੇ ਹੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਜਰਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਦੀਵਾਰ, ਹਮਸਾਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਨਿੱਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਿਸਬਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਭਾਈ ਬੁਲਾਏ ਸੀ ਕੋਤਰੂ ਵਾਲੋਂ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਉਹ 2 ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਮਿਸਬਾ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਸਬਾ ਦਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤੀ ਲਲਕਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ FI यासीन है। उन्होंने इनता दोनों फायरिंग शुरू कर दी। कोई गलबात नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं, बस मतलब तैयार सी, वो पहले इस काम ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਵਗਾਰੇ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖੋਰੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਸੇ ਮਸ਼ੀਰਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਮਿਸਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ FI यासीन। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹ ਸਨ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਦਸਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਔਰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਮਸਾਏ ਸਾਰੇ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਆਖਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 1FI ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਹੋ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 4 ਘਰ ਨੇ, 5-6 ਘਰ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਖੇਲਣ ਮੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਹਰ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੜ ਪੈਣਾ। ਬੱਚੇ ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਦੇ, ਮਾਸੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰੌਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਫਲ ਤੇ ਤੰਦਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਮਹਿਫਲ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਚੂਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਸੀ ਤੰਦਲੇ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਬਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੱਥਦਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਵੇਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਦਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਲਝੇ ਨੇ, ਦਸਤੋ ਗਿਰਬਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਥੱਪੜੋ ਥੱਪੜੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਏਡੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਮਾਮੂਲੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਕੋਈ 2 ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਡੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਇਸ। ਹਮਸਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਘਰੋਂ ਫਿਰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਫੈਂਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੜਿਆ, ਤੇ ਲੜਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਲੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਨੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਕਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖੁਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ 2 ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਨਦਾਨ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਂ। IG ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਜੀ ਫੈਰ ਗੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਦਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਹਲੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਡਾ। 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲੈਣੇ, 1 ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ 4 ਫੜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ? ਇਹ ਜੀ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਗੁਨਾਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਦਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਦਰਾਵਾਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, यानी कि हुण नहीं। नाज़रीन इकराम, मुद्दई मुकदमा और इसी केस में मुतासर भी हुए, इनको गोली भी लगी, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी और तफसीलन सुनी। इन्होंने बताया कि किस तरीके से एक बच्चों की लड़ाई और बड़ों को उसकी खबर भी नहीं है, इनको इत्तला भी नहीं है, कहीं गए हुए थे, वापस आए और अचानक इन्हें ऐसे लगा कि जैसे
घात लगाए लोग पहले से इनका इंतज़ार कर रहे थे। इनको जस्ट एक खातून ने पॉइंट आउट किया कि ये यासीन है और फिर गोलियां चलना शुरू होगी। कानून और कानून नाफिज करने वाले इदारों पे इनका ट्रस्ट है और इन्हें यकीन है कि इन्हें जल्द और मुकम्मल इंसाफ ज़रूर मिलेगा। नाज़रीन, आज का केस आप जान चुके हैं कि हमारी बात हो रही है बच्चों की लड़ाई जो बड़ों की लड़ाई में कन्वर्ट हुई और फिर एक खातून अपनी जान से गई जबकि उसका भाई मजरूब हुआ, उनको टांग पे गोली लगी। टीम मुजरिम कौन इस वक्त मुतासरा लोगों के साथ मौजूद है। मेरे साथ जो कत्ल होने वाली खातून हैं उनके हस्बैंड शौहर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, अपना नाम दस्यो जी। बशीर अहमद। बशीर साहब, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਜਕੋਟੋ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਮਸਲਨ ਛੋਟਾ ਵੀ ਲਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਲਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ 18-19 ਸਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਮਕੀਨਾ ਤੋਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬੇਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਮਾਰ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਔਰਤ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਹੜਾ ਸੁੰਝਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਣ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਆਪ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰੋਟੀ ਪਕਵਾ ਲਓ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪਕਵਾ ਲਓ। ਇਹ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ बीवी भी है। अगर ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ਸਾਹਿਬਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? IG ਪੰਜਾਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਚੌ ਸਾਹਿਬ ਐ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹੈ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ मर्जी पता कर लो जी। नाज़रीन, उस बाप की गुफ्तगू आपने सुनी जिसके बच्चे शायद बच्चे सबके एक जैसे होते हैं और बच्चे खेलते हुए लड़ पड़ते हैं। एक ही घर में 2 सगे भाई भी आपस में लड़ पड़ते हैं, लेकिन बच्चों की लड़ाई का हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि उसमें बड़े कूद पड़े, उसे अपनी ईगो का अना का मसला बना लें और फिर बात कत्लो गारत गरी तक पहुंच जाए। मेरे साथ कुछ इलाका मकीन भी मौजूद हैं जो इस मुतासरा शख्स के साथ आए हैं। हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी और ये पूरा इलाका इस वक्त गम और सोग की कैफियत में है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि इस ख़ानदान के साथ वाकई में ज़्यादती हुई है, क्योंकि बच्चों की लड़ाई कोई ऐसा काम नहीं था जिसे सुलझाया नहीं जा सकता था, जिसे बैठकर निपटाया नहीं जा सकता था, लेकिन यहाँ जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया, यहाँ जज्बातियत का मुजाहरा किया गया और फिर बात कत्लो गारत गरी तक पहुँची। अस्सलाम वालेकुम सर जी, नाम दसियो जी। वालेकुम जी, नवीद साहब जी। नवीद साहब की काम करते हो? चेयरमैन है जी पिंड दा। जी पिंड दे चेयरमैन हो और ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਤਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਬਲਕਿ ਲੈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਔਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੋਤਬਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਆਖਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਆ, ਔਰਤ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖੜਿਆ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਔਰਤ ਮਰਡਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਬੜਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ, ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਲਫ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਵੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਚਰੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਬਲਈਆ ਲੜਾਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ? ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਇਸ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਦੱਸੋਗੇ? ਪਿੰਡ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ 10 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਕਟਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਚਪੇੜਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜ ਪਏ ਹੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋ ਆਪਸ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋ ਆਪਸ 'ਚ। ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤਗਰੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ? ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਸਟਮ, ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਲਹਿਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਟੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਵਾਰਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਹੈ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਸਿਆਣੇ, ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਬਰਾਦਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਇਆ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲੜੋ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਜਾਣੀ ਸੀ ਦੋਏ ਘਰ। ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੀ ਲੜੇ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ 9 ਵਜੇ ਵਕੂਆ। ਮੇਰੀ ਮੁਦਈ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੈ ਨੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਕੂਏ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ 10 4 5 ਘੰਟੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਅਗਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੋਤਬਰ ਦੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਤਲ ਮਤਲਬ ਬੂਟਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਮ। ਹਮਸਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਮਸਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਮਸਾਏ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਵੇਖਿਓ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਆਏਗੇ ਨਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਿਆਦਤ ਅਪੀਲ ਆਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਦਨਾਨ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ। ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮਸਲਨ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਰ ਰੈਂਟ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮਹੱਲੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਕੂਆ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਸਿਗਰਟ ਲੈਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 2 ਮਿੰਟ ਖਲੋਇਆ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਧੋਣ ਕੱਢੀ ਅੱਗੇ, ਹਾਂ ਪਾਪੜਾ ਅਗਲਾ ਖਲੋਤਾ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੌੜਦਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵਾਹਦ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇੰਜ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਪਾਪੜਾ ਲਾ, ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਜੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮੈਂ ਖਾਧੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਆ। ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਦਿਲੀ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਵਕੂਆ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਸਤੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ? ਦਸਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ, 3 ਮਿੰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ, ਬੋਲ ਬਲਈਆ ਕਰਨਾ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਵੇਖਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ। ਉਹ ਚਲ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਸੀਨ ਦਾ ਸੀ ਮੂੰਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਐਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹ
ਬਚਾਉਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਜੀ, ਆਲਾ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ होना चाहिए। नाज़रीन इकराम, अगर पूरा इलाका गवाही दे रहा हो तो इसका मतलब ये होता है, और हमारे साथ चेयरमैन भी मौजूद थे। गांव में नंबरदार चेयरमैन सिस्टम चलता है और इनका ये कहना था कि ये एक इंतहाई सफ़ेद पोश और गरीब ख़ानदान था, इनका कसूर कोई नहीं था, सिर्फ एक बच्चों की लड़ाई को इस कदर बढ़ा दिया गया एक ख़ातून की कम अक्ली ने, उसकी कम फहमी ने, कि उसने उठा के अपने भाइयों को फ़ोन कर दिया और भाई भी बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर कोई बात किए मुसल्ला होकर आए और अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे एक खातून जाँ बहक हुई और एक शख्स ज़ख्मी हुआ। और तमाम लोग यही अपील करते हुए नज़र आते हैं आला हुकाम से कि उन्हें जल्द और मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाए। नाज़रीन, इंसान अगर इंसानियत के अंदर रहे तो फिर ये अशरफुल मखलूक़ात है और मसजूद मलाइक है, लेकिन अगर दरिंदगी पे उतर आए तो फिर ऐसा कि हैवानियत भी शर्मा जाए। हमने मुजरिम कौन के प्लेटफॉर्म से आपको बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ बताई हैं जहाँ पे शायद इंसानियत सोज मजालम किए गए। फैसलाबाद की तहसील समुंदरी में थाना सदर समुंदरी की हदूद के अंदर ऐसा ही एक वाक़या पेश आया, जहाँ पे खेल में बच्चे आपस में उलझ पड़ते हैं और फिर ये बच्चों के खेल की लड़ाई एक खून रेजी में तब्दील हो जाती है। एक खातून अपनी जान से जाती है जबकि एक शख्स ज़ख्मी होता है। आखिर क्या ऐसा हुआ कि बच्चों की लड़ाई इस कदर दरिंदगी में तब्दील हो गई? टीम मुजरिम कौन मौजूद है थाना सदर समुंदरी के अंदर। हमारे साथ SHO थाना सदर समुंदरी सब इंस्पेक्टर राना रिजवान जावेद मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा ये क्या माजरा है, रिपोर्ट कैसे हुआ, पुलिस ने इस पे फिर रिस्पांस जो है वो कैसे दिया और फिर मुलजिमान की गिरफ्तारी तक हुआ क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्खा 10/10/2025 को हमें कॉल इत्तला मसूल होती है 15 कॉल पे कि फायरिंग हो रही है। पहले कॉल मसूल हुई है लड़ाई झगड़े की, फिर कॉल मसूल हुई है कि फायरिंग हो रही है, फिर तीसरी कॉल मसूल हुई है कि वहाँ पे एक औरत की डेथ हो गई है। ये यके बाद दीगरे तीनों कॉल्स मसूल होती हैं हमें। तो हुआ ऐसे है कि मदई जो है, इसमें मदई मुकदमा यासीन, उसके बच्चे कासम और मुलज़म जो वकील है उसके बेटे फ़रहान का आपस में मूली तलक कलामी हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है। वो बात पहले एक रात थोड़ा झगड़ा हुआ है, फिर सुबह 10 तारीख की सुबह इनका झगड़ा हुआ है। तो झगड़े के दौरान जो इसकी फ़रहान की वालदा होती है, वो मिसबा उसका नाम है, वो अपने भाई तारक और बशार को कॉल करती है कि इस तरह हमारा इधर झगड़ा हुआ है, आप आए। तो वो इसको जब आते हैं तो इनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं यासीन वगैरह से। यासीन उधर मौजूद होता है, इसकी बेगम मौजूद होती है, इसकी जो बहन है शरीफा बीबी जिसका कत्ल हुआ है वो वहाँ पे मौजूद होती हैं। तो जैसे वो आते हैं तो इनको लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उसके पास असला होता है, वो फायरिंग करते हैं दोनों भाई। और इससे शरीफा बीबी जो है इसकी मदई मुकदमा यासीन की बहन, वो मौका पे उसकी डेथ हो जाती है, उसके सर पे फायर लगता है। तो एक जो वो कत्ल हो गई और साथ में जब वो मज़ीद फायरिंग करती हैं तो यासीन के भी दाईं टांग पे फायर लगता है। तो फायरिंग करते हुए वो मौका से फ़रार हो जाते हैं। इसी तरह ये जमील और इसकी जो बेगम थी मिसबा और इसके बच्चे, ये भी मौका से फ़रार हो जाते हैं। रिजवान भाई, जब पुलिस पार्टी वहाँ पे पहुँचती है तो जाहिर है वो जहाँ पे कत्ल हुआ होता है, कत्ल से बड़ा जुर्म तो खैर कोई है ही नहीं, इससे बड़ी दफ़ाई कोई नहीं है जो हमारी PPC में। तो क्या सूरत हाल क्या थी? क्या जो क्राइम सीन होता है उसको प्रिजर्व करना मुश्किल हो जाती है? गांव देहात के इलाके में ख़ास तौर पे लोग इकट्ठे होते हैं, तो जो शवाहिद इकट्ठे करने में मुश्किलात पेश आती हैं इस तरह के सीन में, जब गांव देहात का होता है और एक मर्डर हो जाए, दूसरा ज़ख्मी हो, तो जाके जो इनिशियली आपको लगता है वो क्या सीन क्या था? जी बिल्कुल, वहाँ पे लोग डेफिनेट जिनका कत्ल होता है वो उसको रंज भी होता है, गुस्सा भी होता है कि ये देखें जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया है। तो जब कॉल मसूल तो मैं DSP साहब, SP साहब, सदर डिवीज़न, हम मौका पे जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं तो वो बेचारी पड़ी थी वहाँ पे, उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। फिर हम उसके शवाद इकट्ठे करने के लिए PFS टीम को बुलवाया गया, वहाँ से जो ब्लड सैंपल्स हैं वहाँ पे लिए जाते हैं, खोल इकट्ठे किए हैं हमने, ठीक है ना। वहाँ पे जो उस वक्त मौका पे एविडेंसेस थी, मतलब लोग जो थे उनके बयानात लिए हैं,
तो डेफिनेटली वो जख्मी था, जख्मी को क्या उन्होंने अपनी मदद आपके तहत शिफ्ट किया या फिर रेस्क्यू ने या फिर पुलिस ने जाकर जो है वो इसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया? बिल्कुल 11 मई को कॉल की थी उनके गांव से किसी ने, तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो 11 मई की टीम भी आ गई थी। तो फिर जो यासीन था जो मजरूब था उसके बयानात भी हमने कलमबंद किए और साथ में उसे हॉस्पिटल भिजवाया, उसकी टांग पे फायर लगा। इस तरह का जब कोई बड़ी वारदात होती है, कत्ल जैसा जुर्म जब होता है, तो फिर जाहिर है वो पंजाब पुलिस और ख़ास तौर पे फैसलाबाद में फिर वो ज़ीरो टॉलरेंस है, फिर वो टीम्स तश्कील दी जाती हैं। क्या उसके बाद फिर आपने कहाँ से स्टार्ट कहाँ से लिया, क्योंकि ये तो फ़रार हो गए मुलज़मान जो हैं, ये फायरिंग करते हुए मौका से फ़रार हो गए, कितना टाइम लगा, क्या क्या मुश्किलात पेश आई इनको ट्रेस आउट करने में, क्या आराम से हाथ आ गए या फिर दिन रात कुछ एक करना पड़े पुलिस को? बिल्कुल, जब इतना बड़ा उन्होंने जुर्म किया तो उन्होंने भागना तो था, तो वो भागे मौके से। मौका से हमें ये नहीं मिले, ये फरार हो गए चारों, दोनों भाई भी और ये अकील भी और उसकी जो मिसेज है वो भी भाग गए। तो फिर हमारे लिए एक चैलेंज होता है ये काफ़ी बड़ा कि एक बंदा जो इतना बड़ा कुआ करके भागा है तो उन्हें पकड़ना डेफिनेट वो छुपा हुआ होता है। तो उसके लिए हमने एसपी साहब सदर की ज़ेर निगरानी में उन्होंने टीमें तश्कील दी, जिनमें मैं था, मेरी चौकी इंचार्ज थे, असलम साहब थे। तो इन्होंने हमने दिन रात एक करके बाकी मुलज़मान भी पकड़े हैं। तो जो थी चंद घंटों में ही हमने मिसबा को अरेस्ट कर लिया था 170 से। जो कुतरवाल रिजवान भाई, आपसे जो वाक़या सुना है इसमें मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो मुलजिमा है, सबसे बड़ा जो जुर्म है वो हुआ ही इस खातून के उकसाने पे है। ना ये एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाकर पेश करती, ना अपने भाइयों को बुलाती, ना इतना बड़ा, पंजाबी में हम उसको कहते हैं कपत होता, ये कपत ही हुआ है कि मतलब एक इंसान जो है वो अपनी जान से गई, एक खातून और एक शख्स जो ज़ख्मी हुआ। ये मरकज़ी मुलज़िमा ही इसे हम गर्दान सकते हैं कि यही थी, इसी के उकसाने पे कत्ल किया गया। अब गोली किसने चलाई ये तो ज़ाहिर है चारों बराबर के जो हैं वो जुर्म। क्या सारे जो मुलज़िमान हैं ये अरेस्ट हैं या अभी को बाकी है? बिल्कुल, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो तो यही है कि मिसबा ने ही उन्हें कॉल करके बुलाया अपने भाइयों को कि आए इधर बड़ी शदीद लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जबकि इतना नहीं था, मामूली था, बच्चों की लड़ाई थी। तो सेकंड जो थी जिन्होंने उन्हें बुलवा के अटैक किया, तो डेफिनेट वो उसमें मर्डर तो हुआ है। तो वो आए हम, ये था 168 सराज जिसमें ये वकूआ हुआ है, वो आए हैं 170 कुतरवाल से, वो भी हमारा एरिया है कुतरवाल, वो इधर से बिल्कुल बाउंड्री लगती है तांदरे वाला की, उधर से वो आए हैं, आके उन्होंने हमला किया है। तो ये अरेस्ट भी उधर से ही हमने किया है ऐसे मिसबा को। तमाम के तमाम पकड़े गए हैं या कोई बाकी है? एक बकाया है, 3 का 4 नामजद थे, चारों में से 3 अरेस्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। एक मुलज़म बकाया है तारक, वो भी इंशाल्लाह हम वो टीमें हैं टेक्निकल बहुत साल की। कितना टाइम लगा, कितना खपना कितना पड़ा है रिजवान भाई इनके पीछे, क्योंकि ये आपका एरिया ऐसा है कि यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस करें तो फिर बंदा आगे रावी के इलाकों में जाके कहीं गुम हो सकता है। इस तरह के जो क्रिमिनल्स होते हैं वो उनके लिए छुपना भी कितना मुश्किल है। कितने दिन लगे आपको टोटल इनको पकड़ने में? मिसबा को हमने चंद घंटों में ही अरेस्ट कर लिया था, वो अपने मेके चली गई थी वहाँ पे किसी जगह में जाके। तो ये जो हैं अकील और बशारत, इन्हें भी हमने, वो आपकी बात ठीक है बिल्कुल, एरिया तो इधर उसी और रीज़ है, तो उन्हें भी हमने अरेस्ट कर लिया। रिजवान भाई, समुंदरी सदर का जो इलाका है ओवरऑल क्राइम किस तरह का है? आपको ज़्यादा किस तरीके के जो जुर्म हैं और जो मुजरिमान हैं उनसे वास्ता रहता है? देखें, क्योंकि ये हमारा देहाती एरिया है ज़्यादा, इधर अड्डा कोटा से लेके कुतरवाल तक काफ़ी लंबा एरिया, तमाम देहात है हमारे पास। हमें ज़्यादा इशू आता है मवेशी चोरी का, क्योंकि इतने एरिए और इतनी नफरी के इसमें हम जो सबसे ज़्यादा हमने किया है जनाब CPO साहब के हुक्म से कि हमने ठीकरी पैरा जात हर गांव में लगवाए हैं, हर गांव में हमें उन्हें बाकायदा चेक भी करते हैं। ठीकरी पैरा हमारे नाजरीन की सहूलियत के लिए बता दें कि इसमें गांव के लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो बारी अपनी अपनी उन्होंने लगाई होती है और वो खुद ख्याल रखते हैं। और ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि पुलिस हर वक्त हर घर के बाहर मौजूद नहीं रह सकती और ये बड़े अच्छी एक रूटीन है। अगर गांव देहात में इसको फॉलो किया जाए तो शायद क्राइम रेट बहुत तेज़ी से नीचे आ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और जब ठीकरी पैरे जब से लगे हैं तो तब से हमारी कोई वारदात नहीं हो रही। सेकंड, जो पुलिस के एंड पे जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि जो भी रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान जो मवेशी चोरी में पहले जेल जा चुके हैं या बारहा करते हैं, तो उन्हें हमने अरेस्ट भी किया है। इस बार भी जो हमारा 1 वीक पहले हमारा एक बड़ा अच्छा गैंग था, उनसे हमने काफ़ी मवेशी भी रिकवर किए। तो इस तरह ये सारा। अच्छा रिजवान भाई, मवेशी चोर और रिकवर से मुझे याद आया कि एक सवाल है जो मेरे जहन में है, ऑब्वियसली हमारे नाजरीन के जहन में भी ये सवाल कुल बुला रहा होगा कि एक
कार चोर, मोटरसाइकिल चोर गैंग आप पकड़ते हैं तो वो रजिस्टर्ड चीज़ें होती हैं, उसका गाड़ी का नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन, वो ओनर को, मालिक को पता चल जाता है ये मेरी है। बेशक उसके आपने जिसको कहते हैं टंकी टापे चेंज भी किए हों तो पता चल जाता है। जानवर, मवेशी चोर जब आप पकड़ते हैं, गैंग्स पकड़ते हैं, तो मालिक को कैसे पता चलता है कि ये मेरा जानवर है, और क्या तफ्तीश के दौरान वो इलाके बताता है या कोई स्पेसिफिक और भी इसका होता है, ये ज़रा बताइएगा। देखें, इसका इंजन नंबर, चेसी नंबर तो नहीं होगा ना, तो इसमें यह है कि उसकी एज सबसे पहले, कि उसकी जो दांतों से वो दोंदा है, चौगा है, छिक्का है, ठीक है। उसके बाद माथे पे जो निशान होता है इसका, उससे सींग कैसे हैं, सींग लंबे हैं, टेढ़े हैं, मतलब ऊपर उठे हुए हैं, पूंछ से, पूंछल जो इसकी होती है वो किस कलर, ये जो ज़ाहिरी निशानियां होती हैं, ये जब रिपोर्ट करता है कोई अपने जानवर की चोरी की, तो उस वक्त फिर पुलिस एहलकार बाकायदा उसको तफसील से लिखते हैं? जी बिल्कुल, जब भी इनकी चोरी होती है तो वो मदई मुकदमा हमारे पास आता है, वो उसका हुलिया जात मुकम्मल लिखा जाता है। जिस तरह गाड़ियों के इंजन नंबर, चेसी नंबर, कलर वगैरह, इसी तरह इसका भी रंग ब्लैक है, ब्राउन है, वाइट है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की है। अगर किसी की गाय है, जाहिर है वो फिर लिखवाएगा कि तकरीबन उसकी उम्र 2 साल थी या 4 साल थी, ये रंग था, उसके माथे पे इस तरह का था। तो अगर वो कन्फेशन करते हैं चोर के हमने फ़लाँ इलाके से फ़लाँ जानवर चोरी किया, और उनके पास उस हुलिये से मिलता जुलता है, तो दैट मीन्स कि उसी का होगा जिसका वो क्लेम कर रहा है। बिल्कुल डेफिनेट, उसके बामुताबिक FIR जो उसका हुलिया होगा, रिकवरी अगर होती है तो फिर उसे असल मालिक को हुलिये के मुताबिक ही दी जाती है। कुछ ही दिनों में सर्दी की आमद हो जाएगी, दस्तक दे रही है हमारी दहलीज पे खड़ी सर्दी, स्मोक का राज होगा, धुंध पड़ेगी, क्या पैगाम देंगे समुद्री के लोगों को, किस तरीके से वो केयरफुल रह सकते हैं, किस तरीके से एहतियात कर सकते हैं ताकि पुलिस और अवाम मिलकर जराइम में कमी ला सकें? जी बिल्कुल, ये ठिकरी पैरा पहली चीज़ है, ऐलानात भी हमने करवाए हैं, ठिकरी पैरा जात लगवाए भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल लोग भी अपनी ज़िम्मेदारी से लगा भी रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा केयर करनी थी अपने मवेशियों की। पहले गर्मियों में हर बंदा कोई बाहर सोया होता है, कुछ चारपाई, तो अपनी केयर करें मवेशियों की, खुद की, अपनी, क्योंकि और बिला वजह ऐसे सफ़र ना करें, धुंध होती है, क्योंकि इधर एरिए बड़े मतलब काफ़ी ज़्यादा, पंजाबी में हम कहते हैं कि डूंगे पिंड। हाँ जी, डूंगे पिंड ने, तो मतलब रात बराते निकलना ये गैर ज़रूरी, अगर कोई निकलना पे तो मतलब अपनी कोई ना कोई, अगर 115 ते कॉल करके अगर किते जाना वा, तुहानूं कोई डर लग रहा, या मशकूक बंदे तुहानूं पता लगता है अच्छा, कि ये फलां फैसिलिटी हमारे पास है कि अगर हमने कहीं इमरजेंसी में जाना है और हमें लगता है कि हमारा रास्ता ख़तरनाक है, तो हम निकलने से पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर दें, तो क्या ये फैसिलिटी है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल। हमने इस एरिया को बड़ी तरतीब से, इसको रजाना रोड से हमारी एक मोबाइल रहती है, हमारा जो ईगल है लशारन उधर बिल्कुल अवेलेबल है, इसी तरह हमारा तानरे वाला रोड है, इसी तरह हमारा महालम रोड है, उसमें हमने पेट्रोलिंग है, इसी तरह हमारा जो सत्याना रोड है, हमने इन चारों एरिए को, 4 मेन हमें रोड पड़ते हैं, उन एरिया में हमारी पेट्रोलिंग मुनासब, और किसी भी वक्त, किसी भी टाइम किसी को ज़रूरत है पुलिस की, हम 24 आवर्स अवेलेबल हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। नाज़रीन किराम, सदर समुंदरी पुलिस स्टेशन में टीम मुजरिम कौन ने आज एक केस के साथ साथ 2 मेजर चीज़ें जो हैं वो आप तक पहुंचाई। एक, जानवर चोरों की शनाख्त, जानवर जो हैं जो क्लेम करते हैं लोग कि हमारा चोरी हो गया था और चोर गैंग पकड़ा जाता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग था, रिजवान भाई ने बहुत वाज़ेह कर दिया कि किस तरीके से। और दूसरा, अच्छी और सबसे जो रूटीन एक अच्छी रिवायत एक अच्छी डेवलप कर रही है समुंदरी पुलिस और रिजवान भाई सदर पुलिस स्टेशन, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे क्योंकि गांव देहात दूर दराज हैं, सर्दी का मौसम है, और अगर किसी को खुदा न खास्ता एमरजेंसी में कहीं ट्रैवल करना पड़े तो आप अपनी पुलिस पे भरोसा कर सकते हैं। आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमें एमरजेंसी में कहीं निकलना पड़ रहा है, रात का पहर है, खौफनाक और ख़तरनाक रास्ता है, तो पुलिस हमेशा आपकी हिफाजत के लिए अवेलेबल है। नाज़रीन किराम, टीम मुजरिम कौन मौजूद है सदर समुंदरी पुलिस स्टेशन में, और बात हो रही है उस केस की जिसमें खेलते हुए बच्चों की आपस में लड़ाई बड़ों की लड़ाई में कन्वर्ट हुई और फिर बात कत्लो गारत गरी तक पहुंच गई। हमारे साथ इस केस के IO यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम असलम भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा क्या वाक़या था, ये किस तरह से रिपोर्ट हुआ और पुलिस का इस पर रिस्पॉन्स कैसा था? वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ख़ैर 10-10-25 को मैं पेट्रोलिंग गश्त पे था,
तकरीबन 10:30 बजे 15 पे कॉल मसूल होती है कि चक नंबर 168 गाबे में फायरिंग हुई है और एक औरत की डेथ हो गई है। मैं SHO साहब के हमरा वहाँ पे मौके पे पहुँचा हूँ, देखा तो वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी है शरीफा बीबी के नाम के। उनसे पूछा गया, उन्होंने बताया कि हमारी 2 दिन पहले बच्चों से लड़ाई हुई थी, उस दिन भी बच्चों की लड़ाई हुई है। उस वजह से मिसबा नामी औरत थी, उसने अपने भाई को तारक वगैरह को बुलाया 170 कुतरवाल से। वो आया, उसने आके शरीफा बीबी को फायर मार दिया। यासीन उसका भाई था शरीफा बीबी का, उसको एक फायर मारा जिससे वो ज़ख्मी हो गया। अच्छा, आपके उधर पहुंचने से पहले असलम साहब जो ज़ख्मी था वो मूव हो चुका था, या जब आप पहुंचे हैं तो ज़ख्मी अभी उधर ही था? जब हम वहाँ पहुँचे मौके पे तो वहीं यासीन वहीं मौजूद था। 112 को कॉल की, फिर उसको हमने अपनी निगरानी में सिविल अस्पताल समुंदरी भिजवाया। डेड बॉडी को हमने फिर अपना वहाँ सिविल अस्पताल समुंदरी भिजवाया, उसका पोस्टमार्टम करवाया और उसकी तमारदारी जो भी है ना इसकी कराई। अच्छा, ये बताएं कि ये वक़ूआ करने के बाद मुल्ज़िमान मौका से फ़रार हो गए। एक रिवायत है कि जब इस तरह का कोई बड़ा जुर्म होता है तो फिर वो घरों को ताले लगा के सब के सब फ़रार हो जाते हैं। क्या इस तरह का कुछ आया था या सिर्फ मुल्ज़िमान फ़रार हुए थे, बाकी घर के अफराद वहीं पे थे? नहीं, तमाम मुल्ज़मान उनके घर वाले फ़रार हो गए थे। थोड़ी देर बाद SP साहब की निगरानी में और DSP साहब की निगरानी में एक टीम तश्कील दी। मिसबा को हमने, उसका भाई 170 कुतरवाल थे, वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया। अकील नामी शख्स था, उसको गिरफ़्तार किया और बिशात को हमें गिरफ़्तार कर लिया गया। मिसबा जुडिशल जा चुकी है, बाकी 2 मुल्ज़िम हमारी कस्टडी में हैं, जबकि तारक की तलाश जारी है, इंशाल्लाह वो जल्द गिरफ़्तार कर लेंगे। अच्छा सर, बताइएगा कि बच्चे हैं, खेलते हुए लड़ पड़ते हैं, आपस में झगड़े भी हो जाते हैं, बच्चों की मार कुटाई भी हो जाती है। क्या इस वाक़े को होने से रोका जा सकता था अगर बड़े समझदारी का सबूत देते, और ख़ास तौर पे वो खातून जिसने फ़ोन करके पीछे से अपने भाइयों को बुलाया और वही इस सारे वक़ूअ की बज़ाहिर ज़िम्मेदार भी लगती है, तो क्या अगर वो समझदारी का सबूत देती तो 2 घर मुतासर होने से बचाए जा सकते थे? बिल्कुल जी, ऐसा ही है। मुगली तलकलामी हुई है, उसने मिसबा ने रोल अदा किया, उसने अपने भाई को बुला लिया तारक वगैरह को, उन्होंने जज्बात में आके फायर मार दिया। अगर वही तारक नामी वो शख्स आया था, उसका काम था पूछता भी क्या मसला है, लेकिन वो पता नहीं उसके दिमाग में क्या आई है कि उसने फायर मार के को मजरूब कर दिया कि डेथ कर दे। अभी इस केस के 4 जो है नॉमिनेटेड FIR में मुल्ज़िमान हैं, क्या चारों पुलिस की कस्टडी में हैं या अभी कुछ बकाया हैं? मिसबा जेल जा चुकी है, अकील नामी शख्स है वो मेरे पर रिमांड पे है। बिशारत भी हमने गिरफ़्तार किया हुआ है, जो तारक मफरूर है, इंशाल्लाह जल्द उसको भी गिरफ़्तार कर लेंगे। ज़ाहिर है पुलिस है उनके गिर्द घेरा तंग करेगी। असलम साहब, ये बताइएगा कि समुंदरी में ओवरऑल जो है वो क्राइम कितना है? क्या आप समझते हैं कि बाकी तहसीलों की निस्बत जो है वो समुंदरी ज़्यादा पुरअमन है, यहाँ पे क्राइम कम है, और अगर है तो किस टाइप का है? हमारे क्राइम ज़्यादा सरका मशी है, कोई वारदात 392 वगैरह हो जाती है, ज़्यादा लड़ाई झगड़े केस होते हैं, क्यों देहात का इलाका है, इसमें लोगों को इतना शोर नहीं है, मामूली सी बात पे बंदे लड़ पड़ते हैं। हमारे देहात में लोगों को असलम साहब ये कौन बताएगा कि मुसालहती कमेटियां बनी हुई हैं गांव के लेवल पे, अभी वो पंचायत सिस्टम भी चलता है, पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन अगर हो जाए, अगर बर वक्त अपनी मसाइल जो हैं वो पुलिस को बता दिए जाएं, एक पूरा प्लेटफार्म है, पुलिस स्टेशन आ सकते हैं, आप 15 पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप अपना मसला बर वक्त पुलिस को बताएं तो आप समझते हैं कि ये जो क्राइम होते हैं गांव में, कोई दीवार पे किसी की लड़ाई हो गई, किसी की पानी के वो खाले के पानी पे लड़ाई होगी, इनसे बचा जा सकता है? बिल्कुल जी बचा जा सकता, क्यों नहीं। बस ये है ना, अपनी अनाई खातर एक दूसरे लड़ पड़ते हैं। इनको चाहिए है कि छोटी मोटी लड़ाइयों में पिंड गाँव के नंबरदार हैं, चेयरमैन हैं वगैरह, जो भी इनकी सुलह करवानी चाहिए, लेकिन ये अपने अना की खातर एक दूसरे से सुलह नहीं करते हैं, कि थाने का रुख करते हैं, कचहरियों का रुख करते हैं, जिनके लाइल्मी का इनको शौर नहीं है इतना। अच्छा असलम साहब, बताइएगा क्या पैगाम देंगे समुद्री के लोगों को? आप पुलिस ऑफिसर हैं, आपका क्राइम से, क्रिमिनल से वास्ता रहता है, क्या लोग ऐसा करें, किस तरह से पुलिस के साथ ताउन करें कि जराइम में कमी लाई जा सके और एक पुरअमन और ख़ूबसूरत शहर को तश्कील दिया जा सके? जी, हमको यही पैगाम दें कि भाई मूली बातों पर जो लड़ाई झगड़े होते हैं, पर्चे करवाते हैं, इनसे परहेज़ करना चाहिए और बैठ के आपस में बैठ के इन मामलों को हल करना चाहिए। नाज़रीन इकराम, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम हमारे साथ मौजूद थे IO इस केस के, और 3 मुल्ज़िमान जो हैं वो गिरफ़्तार हैं, एक अभी बाकी है और पुलिस उसके गिर्द भी घेरा तंग कर चुकी है। अनकरीब वो कानून के कटहरे में होगा, पाबंदे सलासिल होगा। नाज़रीन इकराम, ये वाक़या हो गया, एक खातून अपनी जान से गई, एक शख्स ज़ख्मी हुआ, लेकिन पैगाम बहुत लाउड एंड क्लियर है कि क्या इस वाक़े को होने से रोका जा सकता था? बिल्कुल रोका जा सकता था। एक खातून की जल्दबाजी ने
एक खातून की जज्बातियत ने इस सानहे को जन्म दिया। अगर वो खातून थोड़ा सा तहम्मुल से काम लेती, सब्र से काम लेती, बच्चों को ख़ास तौर पे अपने बच्चों को समझाती, तो शायद ये कत्लो गारतगरी जो है उसकी नौबत ना आती। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया और इसमें एक फ़िक्र अंगेज़ सोच भी है कि क्या हम तहम्मुल, बुर्दबारी और बर्दाश्त से काम नहीं ले सकते? यकीनन लेना चाहिए, क्योंकि अगर तहम्मुल, बुर्दबारी और बर्दाश्त से काम नहीं लेंगे तो फिर ऐसे वाक़यात जन्म लेते रहेंगे। बच्चों की लड़ाई में बड़ों का कूदना बिल्कुल ही गैर अक्लमंदाना फ़ैसला था, जिसका नतीजा एक इंसानी जान के ज़िया की सूरत में सामने आया। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त।